Okay, good morning dear students. We are going through our chapter number 12, electricity and circuits. Let's try to conclude in this session. There is not much left in this chapter. We have already gone through what is electricity. Electricity is a saved form of energy. It can be converted into so many other forms of energy, that is heat energy, magnetic energy, mechanical energy, like that. Okay? Then we have studied for the purpose of simply understanding the concept, what is electric current, how it flows and all that. We have to do certain activities, and for students of class 6, we should not switch on to that domestic power which we are getting. It is having a high voltage of current, it may give you shock. We are using what? Cells or battery for the purpose of activities. हमने किया भी last lesson में. Cells होते हैं बच्चों, different shapes हैं, different उसके sizes हैं, triple A, double A and single A. Then button cells like that. You have seen lithium batteries and all that. ये छोटे वाली एक cell डलती है. Then we are having a battery. When we combine two or more than two cells, it makes a battery and all that. We are using a battery and in our cell phones frequently. Now you are using also for getting your lessons. Okay. Then we have studied about cell. It is what this dry cell actually is. Dry cell is nothing but it converts the chemical energy into electrical energy. Okay. And the chemical use are what? There is a carbon rod in that, and it is surrounded by what? Manganese dioxide filled with charcoal, and surrounding that there is a paste of what? Ammonium chloride, NH4Cl. Then there is a metal cap whose positive terminal hai. Then there is a zinc disc at the bottom and all that. This metal cap, positive terminal, this zinc disc, this negative terminal. Then we have studied about what are primary cells and secondary cells. Primary cells, once used, you have to throw it, you cannot recharge it. And secondary cells, once, twice, you can, that because it can be used again and again by recharging. Then we have tried to understand that, not we have tried, we have understood that we have studied what is the electric circuit. Electric circuit is a path along which electric current can flow. वो एक रास्ता है जिसके द्वारा करंट फ्लो करके सर्कल कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट करता है, सो दैट योर अप्लायंसेस, योर गैजेट, जो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम यूज कर रहे हैं वो काम करती है. Then we have tried to understand switch, a simple switch. Simple switch means a device. Switch is a device which makes or breaks the circuit. And these things have been made for our convenience. वो हम अभी स्टडी करेंगे थोड़ा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. Why we are using switch and all that? Why we are putting switch in between the electrical circuit? For our convenience, for our easy understanding and all that. Not easy understanding, for our own convenience. Because we can keep that gadget, keep that appliances, or we can make it on or off as desired by us, as and when needed. Not desired, you can say, when we require, we should put it on the on position, and when we do not require, we should place the switch in the off position. And on and off position, what is going to do? It is going to make or break the circuit. It is going to close or allow the electric current to pass. When it is allowing, it is a closed circuit. It is a complete circuit. That electrical appliance will work. Otherwise, it is not required. We will keep the switch in the off position. That means on and off. पढ़ेंगे अभी हम सारा. So now coming to the small topics, left out topics. First of all, in your book it is covered like that. The case of a fused bulb. Yes. Sometimes what happens is when we are using
this electrical bulb in our homes or the LED bulb, LED in our homes, what happens is sometimes there is a supply, extra voltage comes. The supply के अंदर क्या होता है, due to some problem at the power house something like high voltage current is flowing. When high voltage current flows through a bulb or a LED or a tube light and all that, what happens is it cannot withstand that high voltage and the filament. ये जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इट ब्रेक्स, मेल्ट हो जाता है जब उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज हाई हो जाती है. मैंने आपको बताया ना, इट शोज रेजिस्टेंस द करंट, दैट इज व्हाई इट ग्लोज. अब करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली, और उससे क्या होता है बच्चों, हीटअप ज्यादा हो जाता है वो टंगस्टन का फिलामेंट, और वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है. When after melting it breaks, what will happen? Circuit will be broken. कहने का मतलब क्या है? From complete circuit, it will become incomplete or broken or a open circuit. And in case of open circuit, क्या होगा? It will stop glowing. Light आनी बंद हो जाएगी, light आनी बंद हो जाएगी. So fused bulb, case of a fused bulb. There are so many reasons. एक तो यही है, high voltage of current sometimes. और otherwise क्या होता है बच्चों, everything, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, बूढ़े होते हैं, और ऊपर भगवान जी के पास चले जाते हैं. जैसा एक साइकिल है ये. Likewise, every living thing is having a lifespan. Likewise, though in living and non-living we have studied, non-living things कभी नहीं मरती भाई, नहीं. जिन चीजों को हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमेबल हैं, यानी कि हम उनको इस्तेमाल करते हैं, we use them, regularly use them, they have a certain span of life. Consume, that is why we are using the word consumable. कंज्यूम हो रही है धीरे धीरे. एवरी दिस बल्ब, एलईडी एंड ऑल दैट, आपने देखा होगा 2 years वारंटी. अगर आप डिब्बे को बच्चों ध्यान से पढ़ो ना, मैक्सिमम लाइफ स्पैन उस एलईडी बल्ब का कितना होता है मालूम है बच्चों आपको? कहीं ना कहीं आपको कोने में मिल जाएगा. 1600 आवर्स, यानी 1600 hours. बट दैट नहीं, ऐसा नहीं है आपने एक एलईडी बल्ब लगाया एंड कीप इट ऑन, हर वक्त इसको ऑन रखो. इफ इन बिटवीन इन ए डे यू आर गिविंग रेस्ट टू योर बल्ब, एलईडी, ट्यूबलाइट, इट्स लाइफ इज मोर. तो क्या मतलब क्या है? व्हेन रिक्वायर्ड देन ओनली यू शुड यूज द पावर. अपना दिस यू शुड keep that LED bulb or a tube light on. Otherwise, always keep it in the switch off mode, so that not only you can save the electricity, you can prolong its life also. ठीक है? Now coming to the torch. Torch क्या है बच्चों? Yes, before torch, adding a switch to the electric circuit. Why? इसलिए टू टर्न ऑफ एंड ऑन इजिली एज डिजायर्ड बाय अस. क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, किधर गए भाई वो, यस, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनाया था हमने. अगर हम इसको किसी एप्लायंस के साथ इन टर्मिनल्स को जोड़ देते हैं, जैसे आपके घर में वायर आ रही होती है, उसमें पॉजिटिव वायर होती है जिसमें करंट जो स्पार्क करती है, एक नेगेटिव वायर होती है. कई बार आप टेस्टर से भी देखते हो बच्चों, जिसको आप जब टेस्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव वायर में क्या है, वो जो टेस्टिंग वाला होल्डर है आपका, उसके अंदर वो लाइट ग्लो करती है हल्की सी. ठीक है, वो पॉजिटिव वायर, नेगेटिव वायर सर्किट है. हम क्या करते हैं बच्चों, उसके बीच में ये
अब क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कहने का मतलब क्या है, इट इज गोइंग टू कंप्लीट द सर्किट। होता क्या है बच्चों, जब हम ये बोर्ड होता है हमारा जिसके ऊपर कई स्विचेस लगे होते हैं, जो लाइव वायर होती है, लाइव वायर मतलब पॉजिटिव वायर होती है, वो एक तार जो होती है, एक वायर, सिंगल वायर, वो करके हम उसको कनेक्टिविटी दे देते हैं। नेगेटिव वायर्स इस टर्मिनल को दे देते हैं, पॉजिटिव वायर जुड़ी हुई है। जैसे ही हम किस पर्टिकुलर स्विच को ऑन करते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन का नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यानी पॉजिटिव से फ्लो होके नेगेटिव से वो उस एलईडी ट्यूबलाइट। तो आपने देखा होगा बच्चों, इफ यू वांट टू स्विच ऑन द फैन और ट्यूबलाइट और एलईडी, वी आर स्विचिंग ऑन ए पर्टिकुलर स्विच ओनली, नॉट ऑल द स्विचेस वी आर पुटिंग ऑन इन वन पोजीशन। हम एक, हमारे कमरे में 2 बल्ब हैं, 2 फैन लगे हुए हैं, हमने जो फैन चलाना है हम उसी के स्विच को ही ऑन करते हैं, दूसरे को स्विच ऑन नहीं करते, ठीक है। वो क्या कर रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, वेयर दिस स्विच इज हेल्पिंग अस टू टर्न ऑफ एंड ऑन इजीली एज डिजायर्ड बाय अस। जैसा हम चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर फैन को हम चलाना चाहते हैं, उसी का ही हम स्विच ऑन करते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, सर अदरवाइज आल्सो अगर बच्चों डायरेक्ट आप जो आपकी 2 वायर्स हैं होल्डर में लगा के, इस होल्डर में लगा के, एक आपकी पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर लगा के, अगर इसके ऊपर आप ये एलईडी लगा देते हो, इट विल गो ऑन ग्लोइंग, इट विल नॉट गो ऑफ, यानी जलती रहेगी जब तक आप इसकी तार नहीं निकालते या पीछे से इसको काट नहीं देते या पीछे से पावर हाउस से लाइट नहीं चली जाती। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जब चाहे तब ऑन कर सके, जब हमें नहीं चाहिए हम इसे ऑफ पोजीशन में रख सके। दैट मीन वी शुड ब्रेक द सर्किट और वी विल मेक द सर्किट एट आवर ओन कन्वीनियंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड और डिजायर्ड बाय अस। अदरवाइज और भी क्या होगा बच्चों, अगर ये स्विच हम नहीं लगाते हैं इस सर्किट के बीच में, क्या होगा, ये बल्ब जल रहा है या जल नहीं रहा है, हमने तारें इसकी वायर्स निकली हुई है, व्हाट यू हैव टू डू, एवरी टाइम वी हैव टू screw it, we have to, every time we have to tighten we have to put the wires in the on position and all that। हमें हर बार वायर लगानी पड़ेगी, फिर वो जहां से पावर आ रही है और सॉकेट में उसको तारों को फिर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, सिंपली यू कम, आपने रात का टाइम है, एलईडी जलानी है, ऑन कर दिया, जल गई। और अगर ऐसा स्विच हमने पुटअप नहीं कर रखा उस पर्टिकुलर बल्ब के सर्किट के अंदर, तो क्या होगा, हमें एक बार नए सिरे से उसको लाइन देनी पड़ेगी, उसकी वायर्स लगानी पड़ेगी। तो हमारी अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमारी अपनी इजीनेस के लिए वी आर पुटिंग ए स्विच इन बिटवीन ए सर्किट टू मेक द सर्किट ओपन और टू मेक द सर्किट ए क्लोज्ड वन एज डिजायर्ड एज रिक्वायर्ड बाय अस। इस पर्पज यही है, हम जब चाहें इसको ऑन पोजीशन में कर सकते हैं, हम जब चाहें अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इसको ऑफ पोजीशन में कर सकते हैं। इस यही पर्पज है। ओके, नाउ कम द टॉर्च। टॉर्च क्या बेटे बच्चों, इट इज ए पोर्टेबल लैम्प। पोर्टेबल मतलब क्या, पोर्टेबल का मतलब होता है हाथ में लेके भी चल सकते हो, उठा के अपने साथ लेके चलते हो, पोर्टेबल अपने साथ कैरी कर सकते हो। लैम्प लाइट देती है, जो कुछ नहीं है बच्चों, इट इज यूजिंग दिस टॉर्च इज यूजिंग 2 or more than 2 cells to give you the light, having a bulb in it. The only thing is we taught this bulb, this cells are arranged in such a manner that the positive terminal of the first cell is touching that bulb। इसके अंदर बल्ब होता है बच्चों, ये टॉर्च वाला, ठीक है।
अब उसका जो टिप है एक उसको टच करेगा पॉजिटिव को, और पॉजिटिव के पीछे दूसरा तीसरा, अगर ज्यादा सेल्स हैं 2 और मोर देन 2 हो गए इसमें, दे आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द पॉजिटिव टू फर्स्ट सेल पॉजिटिव टर्मिनल इज टचिंग टू द what metal tip of the torch bulb, and second cell's positive is touching to the negative and likewise, and there is a circuit. Now metal cap, जो metal cap है torch bulb का, वो उसका कनेक्शन किसको दिया जाता है? नेगेटिव के साथ, और द लास्ट सेल, और बीच में कुछ ब्रेकअप है जिस वायर के थ्रू हम, या जिस हम स्ट्रिप के थ्रू हम इसको कनेक्टिविटी दे रहे हैं उसमें ब्रेकअप है। उसके ऊपर क्या होता है बच्चों? दिस स्विच, ये वाला स्विच। द मोमेंट वी विल पुश हियर, क्या होगा बच्चों? ये जो आपके मेटल कैप्स हैं ये इसको टच करेंगे, यहां पे टच करने से क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। हम अपना प्रेशर उठाएंगे एकदम से, फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा व्हेन वी पुश, व्हेन वी पुट ए प्रेशर, व्हेन वी पुश, और जब हम छोड़ देंगे पुश करना, क्या होगा? इट विल अगेन कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देयर विल बी गैप बिटवीन दिस स्ट्रिप और द मेटल वायर एंड दिस, सो it will be a broken circuit or open circuit. So this is how the internal structure of your torch, how it functions. So simply क्या है बच्चों? Torch is a portable electric lamp which uses 2 or more cells to light a bulb. इसके अंदर जो बल्ब है उसको लाइट करने के लिए 2 or more than 2 cells को यूज करता है। The positive terminal of one cell is kept in contact with the negative terminal of the other. Positive terminal of the one cell is kept in touch with the negative, उस ऐसी तरह। और फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव है वो किसके साथ है? जो आपके इस टॉर्च के बल्ब की मेटल टिप है, मेटल कैप से सर्किट लास्ट वाले सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्टिविटी, एंड दिस पुश एंड पुल बटन। क्या होता है बच्चों? टॉर्च के अंदर नॉट ओनली दिस पुश बटन इज देयर इज अ सिस्टम। आफ्टर पुशिंग इट यू कैन मूव इट अपवर्ड्स, परमानेंटली इट स्टिक्स, इट टचेस द दिस वायर ऑन द मेटल स्ट्रिप, and it permanently, until unless you are bringing this button on the back position, it goes up down, okay? Its connectivity will be there, it will be in the on position, switch will be on position, torch will working, it will be glowing, and when required simply push and bring it back to the original position. This is the structure, inside view of the torch and how it functions and works. Now coming to the conductors and insulators. Conductors, conduct करना, किसी चीज को कंडक्ट करना। आपने देखा होगा बच्चों, बस होती है ना अपने, उसके अंदर भी ड्राइवर होता है और क्या होता है? कंडक्टर। वो क्या करता है? बस को पीछे मोड़ना है, वो देखता रहता है पीछे से कोई बस तो नहीं आ रही, कंडक्ट करता है ताकि आपकी जो बस है स्मूथली चल सके। इसी तरह स्मूथली अगर करंट फ्लो करता है बच्चों किसी मटेरियल से, if current can pass through, if current can flow smoothly from any material, that material is a good conductor of electricity, or it is known as a good conductor. So conductor, those materials which allow electric current to pass through them are called conductors. Simply conductor या conducting material. ठीक है? All metals are good conductor of electricity. They easily allow the electric current to pass through them. But silver, Ag, silver is the best. अगर हम कहते हैं बच्चों सिल्वर इज द बेस्ट, आपने देखा होगा बच्चों घर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल वायर यूज करते हैं, मेनली दे आर हैविंग कॉपर वायर इन देम, इंसुलेटेड एंड ऑल दैट। बाहर उसके
प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है। और एल्यूमिनियम वायर आल्सो वी आर यूजिंग। इफ वी से दैट एजी सिल्वर is the best conductor of electricity, best, then why we are not using silver wires at home? क्या है बच्चों? Silver is a costly metal. Silver is a costly metal as compared to the copper. And efficiency, that means quantum of current which can flow through copper or silver, को ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एफिशिएंसी वर्किंग में, फ्लो में, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कॉपर और सिल्वर के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है जितना कॉस्ट का डिफरेंस है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कॉपर वायर्स। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर बार पक्का आएगा क्लास टेस्ट में, फाइनल टेस्ट में आपका। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर वायर्स व्हेन सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको दूंगा भी ये लिखने के लिए। रीजन इज कॉस्ट फैक्टर, मेन रीजन इज कॉस्ट फैक्टर एंड देयर एफिशिएंसी इज ऑलमोस्ट सेम, नॉट सेम बट you can say there is not much difference in the efficiency of conducting of electricity between silver and copper. Silver and copper. That is why we are using copper or aluminium wires. Copper or aluminium wires. Then, when we say all metals or metal alloys are good conductor of all metals or metal alloys are good conductor of electricity. That means non-metals. हम 8 में पढ़ेंगे metals, non-metals भी. Non-metals, they are not good conductor of electricity. But there is one exception. Carbon. Carbon is found in so many forms. It's one form that is graphite. 8th में हम डिटेल में पढ़ेंगे. It's one form which is graphite. आप एक पेंसिल चलाते हो, लिखते हो पेंसिल, नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में आप पेंसिल ही यूज करते थे, अब तो बॉल पेन यूज करते हो, पेंसिल यूज करते हो। उसका जो लेड होता है बच्चों, वो भी ग्रेफाइट का होता है। दैट इज ए गुड कंडक्टर। नॉन मेटल है कार्बन, बट स्टिल द ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ द नॉन मेटल कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आवर ह्यूमन बॉडी इज आल्सो ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा बच्चों, समटाइम when we are touching a live wire, we get a shock. Pure water. When I say pure water means it does not contain even a trace of any salt. Pure water. DW, distilled water भी उसे हम बोलते हैं, DW. Vapors. भाप से बना हुआ पानी, डिस्टल्ड, DW, डिस्टल्ड वाटर। प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आपने देखा होगा बच्चों, समटाइम्स व्हेन आवर हैंड्स आर वेट, हमारे हाथ गीले हैं, एंड वी समटाइम वी आर स्विचिंग ऑन, सिंपली हम किसी इसको ऑन ऑफ भी करते हैं, वी गेट ए शॉक। व्हाई? Because this common water is not a pure water. Common water is not a DW, distilled water. It contains some salts in it. आरओ यूज करते हो ना बच्चों, आरओ यूज करते हो. What it is doing? It is reducing the TDS level of the water. TDS, total dissolved salts. क्योंकि जो भी पानी हम, चाहे वो कैनाल वाटर है, यानी नहर का पानी है, चाहे वो कुएं का पानी है, चाहे वो हैंडपंप का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, इट कंटेन साल्ट्स. वो हमारे लिए फायदेमंद भी है. ओनली थिंग इज इफ दे आर इन एक्सेस क्वांटिटी दे आर हार्मफुल. आरओ इज डूइंग व्हाट? बाय रिवर्स ऑस्मोसिस. आरओ मीन रिवर्स ऑस्मोसिस. हम पढ़ेंगे 8 में डिटेल में. रिवर्स ऑस्मोसिस, it is reducing the level of total dissolved salt required, which is not harmful to our body. तो कहने का मतलब क्या है? Your common water is not a pure water. Your common water is not a
distilled water. That is why if our hands are wet and we switch off or switch on a bulb, switch on or off any electrical appliances, sometimes we get a shock. This is all about what? Conductivity. ठीक है? Why we get shock when our hands are wet? मैंने बता दिया आपको. Okay, pure water, poor conductor of electricity. Yes, it is a poor conductor of electricity. Pure water, not impure. So then the question arises: how to make pure water into a conducting solution? Conducting solution क्या होगा? Add a pinch of salt. चुटकी भर उसमें नमक डाल दीजिए, कॉमन salt डाल दीजिए. It will start conducting the electricity. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके. How you can make the pure water conductive? Add a pinch of salt into it. So this is all about. For you, it is more than sufficient conductor. Then insulator, yes. Insulators are those materials which do not allow electric current to pass through. अब कुछ तो है all the metals. आपकी लकड़ी है, कॉटन है, एयर है, प्लास्टिक है, पीवीसी है, रबर है. They do not allow the electric current to pass through them. And the materials, those materials which do not allow electric current to pass through them are known as insulators. Examples are rubber, plastic, ceramics, wood, cotton, mica, air, etc. अब छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों. What is the fun of having knowledge about conductors and insulators? How it is being used in the daily life? क्या है बच्चों? When we know which material is a good conductor and which material is a insulator. अब हमें कोई ऐसी चीज बनानी है where we want that this material should be a conducting one and that material or some other material should not be a conducting material. So, if we are having the knowledge, if we are having in-hand knowledge, आपका क्या करेगा? It will help you in selecting the raw materials or in selecting the materials which should be used to make that particular item, that particular appliances, that particular thing, material. अब क्या मटेरियल चाहिए? सपोज आपने क्या करना है बच्चों? जैसे आपकी वायर्स हैं. अब ऐसा तो नहीं हो सकता आप प्लास्टिक की वायर बना लो, कॉटन की वायर बना लो, धागे की वायर बना लो. नो, सिंस वी नो दैट कॉटन is a what? Insulator. It does not allow the electric current to pass through. We cannot have wires of cotton threads. We cannot have wires of wood. We cannot have wires of rubber or plastic. To make wires, we have to use a material which is a good conductor of electricity. Reason is we want that electric current should flow through the wire. So wire should be made of what? Made of what? A conducting material. तो कहने का मतलब क्या है? Knowledge about conducting materials or insulator. मैंने C and I लिखा है यहाँ पे. C मतलब conducting material and I means insulators. So knowledge about conducting or insulating materials is made use in choosing materials for making electrical components and appliances. अब जैसे आपका यही है बच्चों, इलेक्ट्रिकल स्विच है. इलेक्ट्रिकल स्विच है बच्चों. इसकी जो आउटर बॉडी है जहां से हमने इसे ऑन ऑफ करना है, ठीक है, वो किसकी ऐसे मटेरियल की होगी? ये बेकालाइट की होती है, प्लास्टिक की होती है. बिकॉज इट शुड नॉट
अलाउ द करंट टू पास थ्रू, अदरवाइज क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा करंट को अलाउ करती है, जैसे हम इसको ऑन ऑफ करने जाएंगे हमारी बॉडी को शॉक लगेगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज वाई ये जो आउटर इसका कवरेज है, आउटर मटेरियल किसका होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। और जहां हमने इसको कनेक्टिविटी स्विच का है पर्पस क्या है, टू मेक और ब्रेक द सर्किट, जहां इसने सर्किट को ब्रेक करना है या बनाना है, टू मेक और ब्रेक, टू ऑन और ऑफ करना है, वो जो कंडक्टिंग मटेरियल जैसे यहाँ इसमें कॉपर के हैं वो किसके होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल के होंगे, किसके होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल के। तो इसका मतलब क्या है, नॉलेज अबाउट कंडक्टर्स और इंसुलेटर इज मेड यूज इन चूजिंग मटेरियल्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल एंड कंपोनेंट्स एंड एप्लायंसेस। जैसे आपका फ्रिज है बच्चों, जहां आपको चाहिए, आपका हैंडल है, आपकी जो आउटर बॉडी है उसके बीच में इंसुलेशन डाल देते हैं। क्यों आपने फ्रिज को बार बार खोलना है, जहां तो बच्चों उसकी वायरिंग जा रही है, जो वायर्स हैं वो मेटल्स की होंगी, उसके ऊपर जो कोटिंग होगी किसकी होगी, प्लास्टिक की, रबर की, पीवीसी की, सो दैट ओनली द करंट शुड फ्लो, current should pass through, it should complete the circuit and the gadget or the appliance should work. अब देखिए, हम ऐसा तो नहीं कर सकते, हम वायर्स बना रहे हैं, उसकी आउटरिंग कवरिंग तो हम कॉपर की करते हैं, उसके इनसाइड में हम प्लास्टिक के वायर देते हैं टू कंडक्ट, क्या होगा उसमें, उल्टा हो जाएगा। कंडक्टिंग मटेरियल्स has become an insulator and insulator has become a conducting material। कहने का मतलब क्या है, जिसको तो हमने छूना है, पकड़ना है, उसको तो हमने कंडक्टिंग मटेरियल का बना दिया, और जिसमें से करंट पास होना है वो हम प्लास्टिक की बना रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो। दैट इज वाई जो कंडक्टिंग वायर्स हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटेड कर दी जाती है, सो दैट वी आर प्रोटेक्टेड for our safety, where we are using the insulators mainly for our safety, किसके लिए, yes, insulator for safety and conductors to carry current, to carry current। कहने का मतलब क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल, जब भी हमने कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और एप्लायंसेस बनाने हैं उसमें क्या होगा बच्चों, दो पार्ट होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल किसका बनेगा, जिसमें हमें करंट को कैरी करना है, और इंसुलेटर का मटेरियल हम कहां यूज करेंगे, सेफ्टी पर्पज के लिए, जहां हमें उसको टच करना है, कुछ करना है, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड द इंसुलेटर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर आवर सेफ्टी एंड कंडक्टिंग मटेरियल्स आर यूज्ड where we want to carry the current। अब डेली लाइफ में बच्चों आप देखते हो हमारी वायर्स हैं, मेटल्स की होती हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन किसकी होती है, पीवीसी की या प्लास्टिक की। आपने देखा होगा समटाइम्स व्हेन द लाइट ऑफ द होल मोहल्ला इज गॉन, सारे मोहल्ले की लाइट चली जाती है, कॉलोनी की लाइट चली जाती है, आप कंप्लेंट करते हो, वो जो पावर हाउस से, कंप्लेंट सेल से क्या होता है, वो ठीक करने वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी वो पोल पे चढ़ के काम करते हैं बच्चों, उनके हाथ के ऊपर रबर के बड़े बड़े ग्लोव्स होते हैं, उनके साथ वो करते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू टच द लाइव वायर्स व्हेन दे आर सेटिंग लाइक द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकेज इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके घरों में लाइट नहीं आ रही, लेकिन जो ऊपर वो पोल है पीछे से तो लाइट आ रही है ना, जब भी उसने काम करना है। अब आपने ये भी देखा होगा, घर में हम काम करते हैं, छोटे मोटे काम पापा कर सकते हैं, आप भी कई बार, पिक्चर आई थी ना ले पंगा, वही वाली बात, आप क्या करते हो, स्क्रू ड्राइवर, इसका क्या है, पीछे वाला ये जो पोर्शन है प्लास्टिक का है, आपका प्लायर, आम भाषा में आप बिगड़ा हुआ रूप हम प्लास बोलते हैं, प्लास, बट इट्स नॉट ए प्लास, इट इज ए प्लायर। इसको क्या बोलते हैं, प्लायर, प्लायर,
screwdriver, other electrical instruments which a electrician is using. वो क्या होते हैं बच्चों, जहां से वो पकड़ के काम करता है, जैसे इसको हम पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं यूज, प्लायर को पीछे से पकड़ के करते हैं, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हमने, जहां से उसका हैंडल है, जहां से हमने उसको पकड़ना है, दैट हैंडल इज मेड अप ऑफ व्हाट? Insulating material. Is made up of what? Insulating materials. So I think this is more than sufficient for you, the 6th class students, about electricity and circuits. Let me see in your book if something is left out, we can cover that also. Okay, just wait for a minute. Let me check up if anything is left out as per your book. As per your book. Nothing, just one thing is that activity to test whether yes, कहीं क्या लिखा भी है मैंने, आपको बताऊंगा मैं. Yes, activity to test whether the given material is a conductor or insulator. ये वाली लाइन बच्चों, if you had been in a class, we could have done this activity, but here वो मैंने कोशिश बहुत की. एंड मैंने जो लास्ट लेसन का जो वीडियो भी देखा उसमें भी क्या है, व्हेन आई एम शोइंग यू दैट, कहां गया आपका, यस, दिस bulb is glowing, it is not glowing, it is, circuit is open, now see, it is glowing, but it is not visible to you because its light is very low and it mingles with the light of the room, tube lights and all that. I have closed the door also, I have switched off the tube lights also, but still I have seen the video. But when you will come after Diwali, we are hoping that everybody will be coming to the school. We will be doing this activity. Yes, for this activity, let me tell you, activity test whether the given, yes, क्या करेंगे बच्चों, हमने स्विच बनाया था, ये स्विच बनाया था इसका मॉडल. What will be doing? हमें कोई मटेरियल दिया, suppose we are having this scale, okay, this plastic we are having a chalk material, or we'll be having this what, a highlighter, or this plucker made up of metal, made up of plastic, piece of wood, rubber. What we will be doing? हम क्या करेंगे, छोटा सा सेटअप बना के हम क्या करेंगे, सर्किट के अंदर जो वायर, एक वायर जो हम, we will keep that switch in a on position to test. अब जो नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर आ रही है, which we are going to fix in the switch, हम उसको या तो दूसरे नेगेटिव वाली या पॉजिटिव वाली वायर को हम ब्रेक कर लेंगे. जहां हम ब्रेक करेंगे वहां हम क्या करेंगे, एक सॉकेट ले लेंगे जिसके अंदर हम रबड़ फिट कर सकते हैं, प्लास्टिक फुट रूल फिट कर सकते हैं, या लकड़ी का टुकड़ा हम रख सकते हैं. क्या होगा, जब हम दोनों वायर्स को टच करेंगे विद द गिवन मटेरियल, इफ इट इज द वुड वी विल बी टचिंग द ब्रोकन, जो कट किए हमने वायर उसको हम टच करेंगे, सो दैट फ्रॉम आवर पर्पस, फ्रॉम आवर साइड वी आर कंप्लीटिंग द सर्किट. यानी पाथ को हम पूरा कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया था आपको, पुल टूटा हुआ है, पुल के नीचे हमने क्या कर दिया भैया, हमने टेम्परेरी उसका अरेंजमेंट कर दिया है. किस चीज का, उसके ऊपर बांस बल्लियां रख दी हैं. अब देखना हमें यह है कि हमारी हैवी बस क्रॉस कर सकती है कि नहीं. क्या होगा, वो पतली जो बांस की बल्लियां रखी हैं वो वेट से क्या होंगी, नीचे बैठ जाएंगे, वी विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू क्रॉस. तो कहने का मतलब क्या, ब्रिज, हम गैप को कंप्लीट करेंगे विद द गिवन मटेरियल. जो टूटा हमारा पुल है, इसमें क्या है, हमारी सर्किट ब्रेक है, वायर को हमने कट के दो हिस्सों में काट के दो हिस्सों में कर दिया. उन दोनों वायर्स के सेंटर में हम गिवन मटेरियल, whether it is rubber, anything made up of metal,
और ए पीस ऑफ वुड, जो भी हमें दिया हुआ है हम उसे रखेंगे. वी विल टच द लाइव वायर्स, वी विल कीप द स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड वी विल बी पुटिंग वन बल्ब इन द सर्किट. वो बल्ब अगर ग्लो करेगा तो गिवन मटेरियल क्या होगा? कंडक्टिंग मटेरियल. इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, वो क्या होगा? इंसुलेटर. तो इस तरह हम एक्टिविटी करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट 3, 4, 5 मटेरियल्स वी विल कलेक्ट एंड वी विल डू द एक्टिविटी व्हेन यू विल जॉइन द स्कूल. ओके, एंजॉय योर स्टडी. थैंक यू. आई विल बी सेंडिंग दिस लेक्चर. यस, वन थिंग मोर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लास्ट लेसन था बच्चों, एक बार फिर आप देखना. ऑलवेज आई एम टेलिंग यू, एज एंड व्हेन यू आर वाचिंग, फुल ब्राइटनेस पे, ज्यादा ब्राइटनेस पे आप वीडियो को वॉच कीजिए, आपको ज्यादा क्लैरिटी नजर आएगी. बट लास्ट लेसन का जो वीडियो है उससे अगर आप थोड़ा ब्राइटनेस नहीं, लो ब्राइटनेस पे देखेंगे तो हो सकता है जो मैंने आपको ये सेल के साथ ये बल्ब ग्लो करने वाली एक्टिविटी दिखाई थी बच्चों, you may be in a position to see, yes, I have tried. Yes, some light you can just when you are having your eyes set, और जब आप आंखें सेट करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं तो आपको वाक्य में नजर आएगा बल्ब ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है, नहीं कर रहा. तो कहने का मतलब क्या, लास्ट लेसन जो है फुल ब्राइटनेस पे बच्चों मत देखना, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेना, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां मैं बोल रहा हूं कि नाउ इट इज ऑफ, इट इज ऑन, द बल्ब इज ग्लोइंग, नाउ इट इज ग्लोइंग, नॉट ग्लोइंग, ग्लोइंग, नॉट ग्लोइंग, then you should see carefully. You will observe blink of light, blink of light. Thank you. Enjoy your day.